بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک پروردگار کے نام سے جو اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ اس نے سال میں ایک پورا مہینہ عطا کر دیا۔ ہاں، ایک مہینہ جو ہمارے جسموں کی زکوٰۃ ہے، جو ہماری روحوں کی پاکیزگی ہے، ہماری آنکھوں کی نمی کی قدر ہے، اور ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی دعاؤں کو سننے والی ہستی جو ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے، ہر تڑپ، ہر خواہش، ہر آنکھ کے آنسو کو محبت اور شفقت سے دیکھتی بھی ہے اور سنتی بھی ہے۔ اور خاص طور پر اس مہینے میں جب ہم جانتے ہیں کہ یہ رمضان کا کرم ہے، یہ مہینہ اس کی خصوصی عنایت کا ہے، تو سوچیں کہ ہمارے مانگنے کا اجر و ثواب کتنا بڑھ جاتا ہوگا، کتنا عظمتوں والا ہے یہ مہینہ۔ یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں، یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، معافی اور قربت کا مہینہ ہے، وہ مہینہ جس میں ہر تھکی ہوئی دعا دوبارہ امید پا جاتی ہے، تھکی ہوئی دعاؤں کی قبولیت کا موسم ہے یہ رمضان کا مہینہ۔ جانتے ہو تھکی ہوئی دعائیں کون سی دعائیں ہوتی ہیں؟ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو برسوں سے مانگی جا رہی ہیں، وہ ہر نماز میں دہرا دی جاتی ہیں، وہ ہر جمعہ میں دہرا دی جاتی ہیں، وہ ہر رات آنکھوں کی نمی میں چھپی رہتی ہیں، لیکن قبولیت کا لمحہ نہیں آتا۔ کچھ لوگ تھک جاتے ہیں، کچھ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید یہ دعا نصیب میں نہیں، شاید یہ ناممکن ہے۔ لیکن سنیں، دعا تھک سکتی ہے، اللہ نہیں تھکتا۔ دعا جو آپ مانگ رہے ہیں اس کا ملنا آپ کو ناممکن لگ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ دعا خاموش ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خاموشیوں کو سننے والا ہے۔ اور پھر افق پر رمضان طلوع ہوتا ہے، رمضان کا چاند نظر آتا ہے، اور یہ چاند یہ خوشخبری لے کر آتا ہے، یہ نوید لے کر آتا ہے، امید ہوتی ہے اس میں، تھکی ہوئی دعاؤں کی روشنی ہوتی ہے اس میں، دل کے سکون کا موسم ہے اور روح کی تازگی کا خزانہ ہے۔ رمضان صرف روزے کا مہینہ نہیں ہے، یہ اعلان ہے، یہ وعدہ ہے، یہ دروازہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ ہے جس میں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ سوچیں، اگر سانس بھی عبادت بن سکتی ہے تو آنکھوں کا ہر آنسو کس درجے پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اس مہینے میں سانس لینا بھی ثواب ہے۔ اگر دن کا ہر لمحہ ذکر ہو تو رات کی ہر خاموشی کیا نہیں کہی جائے گی۔ یہ وہ مہینہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا، جس میں شب قدر رکھی گئی، جس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اور جس میں ایک نفل عبادت کا اجر فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جہاں سانس لینا بھی ثواب ہے، جہاں سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے، جہاں جاگنا اپنی جگہ لطف کا سبب ہے، جہاں سحری کا اپنا مزہ ہے، جہاں تہجد آسان اور دل نشین ہو جاتی ہے، جہاں افطاری کے لمحے دن بھر کی بھوک و پیاس کے بعد اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ شاید ہمیں عام زندگی میں، عام دنوں میں اس طرح محسوس نہ ہو۔ یہ مہینہ ہمیں مسکینوں، محتاجوں، غریبوں کی بھوک، ضرورت کا احساس دلاتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں اللہ کی نعمتوں کی حقیقی قدر کرنا سکھاتا ہے۔ یہ مہینہ ہماری روح کو تربیت دیتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے اور ہر لمحے کو عبادت میں بدل دیتا ہے۔ رمضان میں تہجد، ذرا تصور کریں، جس کو رمضان میں تہجد نصیب ہو گئی وہ باقی تمام تہجدوں سے افضل ہو گئی، کیونکہ یہ مہینہ راتوں کو روشنی بخشتا ہے، نور عطا کرتا ہے اور ہر سانس کو عبادت میں بدل دیتا ہے۔ اللہ کی لاڈلی عبادت فرض نمازوں کے بعد
अफजल तरीन नमाज, और वो भी अफजल तरीन महीने में। सुभान अल्लाह, क्या कहने। और इसका अज्र व सवाब हमारी सोचों से कहीं मावरा है। वो वक्त जब अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नज़ुल फरमाता है और कहता है कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं, है कोई बख्शिश तलब करने वाला कि जिसे मैं बख्श दूं। ज़रा सोचें, रमज़ान का महीना जिसमें नेकियों का अज्र व सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है, और इस मुक़द्दस और बाबरकत महीने में अगर इंसान तहज्जुद पढ़ रहा है तो सोचो तहज्जुद का अज्र व सवाब कितना होगा। और तहज्जुद के बारे में कहा जाता है कि ये दुआओं की कबूलियत वाली नमाज है, इसमें दुआएं बहुत जल्दी कबूल होती हैं। और फिर महीना रमज़ान का हो और वक्त तहज्जुद का हो, और बंदा अपने पाक परवरदिगार की बारगाह में हाजिर हो, तहज्जुद अदा करे और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगे, तो सोचो उस दुआ का क्या मकाम होगा, क्या मर्तबा होगा, क्या कबूलियत होगी। जो दुआएं आपकी अब तक कबूल नहीं हुई, वो दुआएं रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में मांग कर देखिए, वक्त तहज्जुद मांग कर देखिए। फिर देखिए कि अल्लाह ताला आप पर कैसे करम करता है, आपकी दुआओं को किस तरह कबूल फरमाता है। मैं कहती हूँ अगर तहज्जुद पढ़ना किसी वक्त में आसान है तो वो सबसे जो बेहतरीन वक्त है और जो बेहतरीन महीना है वो रमज़ान का महीना है, जिसमें जागना आसान, उठना आसान। वो महीना जिसमें ऐन वक्त तहज्जुद ऐलान किया जा रहा होता है, जगाया जा रहा होता है रोज़े के लिए, सहरी के लिए। और फिर अगर बंदा इस ख़ास वक्त में तहज्जुद पढ़ ले तो कितना अच्छा हो जाएगा। इस महीने में जो तहज्जुद नसीब हो जाए वो बाकी रातों की तहज्जुद से कहीं ज़्यादा अफजल। इस महीने में जो जुमा नसीब हो जाए वो बाकी जो महीनों के जुमे हैं उनसे अफजल हो जाता है। और जो शब इबादत के लिए नसीब हो जाए वो बाकी तमाम रातों की इबादत से अफजल। और सबसे बड़ी और अफजल शब कदर वो भी इसी महीने में नसीब हो रही है, जिसके बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहा है कि ये शब 1000 महीनों से बेहतर है। रातों से नहीं, महीनों से, 1000 महीनों से बेहतर है। इस शब में इंसान की तकदीरें लिखी जाती हैं। जो शख्स शब कदर में ईमान और सवाब की नीयत से क़याम करता है उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। आखिरी अशरे की ताक रातों में इस रात को तलाश करने का हुक्म दिया गया है। तो कितना खुश नसीब है वो बंदा जिसको ये शब नसीब हो, जिसको तहज्जुद नसीब हो। ये महीना ऐसा है कि अगर आप रोज़े के साथ सो भी जाएं तो भी इबादत में रहते हैं, जाग रहे हों इबादत, बैठे हों इबादत, सांस ले रहे हों इबादत। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो सही मायनों में अल्लाह की इबादत करते हैं और झुक कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। और कितने बदनसीब हैं वो लोग जो गाफिल रह जाते हैं, रोज़ा नहीं रखते, नमाज से गाफिल रहते हैं, झूठ और बुराई पर डटे रहते हैं, उन पर इस महीने का असर नहीं होता। दुआ की असल रूह और अजर, दुआ सिर्फ चीज़ मांगना नहीं, ये इबादत है, ये नेकी है, ये अल्लाह की खुशनुदी का ज़रिया है। और क्योंकि दुआ इबादत है, रमज़ान में हर इबादत का अजर बढ़ जाता है, लिहाजा दुआ का अजर भी कई गुना बढ़ जाता है। और जब अजर बढ़ता है तो दुआ कबूलियत के ज़्यादा करीब हो जाती है। दुआ की कबूलियत की सूरतें मुख्तलिफ हो सकती हैं। कुछ चीज़ें फ़ौरन अता हो जाती हैं, कुछ चीज़ें देर में नसीब होती हैं, कुछ चीज़ें अल्लाह किसी और बेहतर शक्ल में अता कर देता है। कभी वो चीज़ हमारे लिए मुनासिब नहीं होती तो अल्लाह बेहतर मंसूबा अता करता है। और कभी सबसे बेहतरीन कबूलियत ये होती है कि दिल मुतमईन हो जाए, सब्र बढ़ जाए और बंदा कह दे या अल्लाह अगर ये मेरे लिए बेहतर नहीं तो मुझे बेहतर अता फरमा। ये सब सूरतें दुआ की कबूलियत की हैं और सब में अल्लाह की हिकमत और मोहब्बत छुपी होती है। कुछ चीज़ें बावजूद के हम मुनासिब और ज़रूरी समझते हैं नसीब नहीं होती, लेकिन
मेरा ईमान है अल्लाह इससे कहीं बेहतर मंसूबा कर रहा है। और कुछ वक्त के बाद हम देखते हैं कि वो चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह थी या बेहतर चीज़ हमारे सामने आ गई। ये वो लम्हा है जब दिल सुकून से भर जाता है, जब बंदा कहता है या अल्लाह शुक्र है कि मुझे वो नहीं मिली क्योंकि तूने बेहतर मंसूबा बनाया। ये लम्हा सबसे कीमती है क्योंकि दुआ का असल कमाल और कबूलियत यही है, दिल अल्लाह की हिकमत पर मुतमईन हो जाए, चाहे हमारी ख्वाहिश फ़ौरन पूरी हो या ना हो। रमज़ान दिल के सुकून और रूह की ताज़गी का महीना है। हर तड़प, हर इंतज़ार, हर मांगना, सब कुछ अजर और कुर्बत का सबब बनता है। दुआ सिर्फ चीज़ मांगना नहीं, ये ताल्लुक़ है, ये राज़दाराना गुफ्तगू है, ये रूहानी तरबियत है। और जो बंदा इस मकाम पर पहुंच जाता है वो पहले ही कबूलियत के रास्ते पर चल रहा होता है। कभी आपने गौर किया है कि बच्चे जब माँ बाप से कुछ मांगते हैं तो कुछ चीज़ें वो उन्हें फ़ौरन नहीं देते। मसलन बच्चे ने कुछ खाया हो और वो दूसरी चीज़ की ज़िद कर रहा हो तो माँ या बाप वो उन्हें दूसरी चीज़ नहीं दे रहे होते कि कहीं ये बच्चे के हाजमे में ख़राबी पैदा ना करे, कहीं कोई मसला ना हो जाए। और कुछ देर के बाद जब उन्हें लगता है कि अब मुनासिब वक्त है, अब बच्चा ये चीज़ खा सकता है, तो वो जो है वो अपने बच्चे को दे देते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल नहीं देते क्योंकि माँ बाप की मोहब्बत जो है वो उन्हें मजबूर करती है कि ये चीज़ जो है मैंने अपने बच्चे को नहीं देनी, ये मेरे बच्चे के लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन बच्चा ज़िद कर रहा होता है, वो समझ नहीं रहा होता। तो हम इंसान भी ऐसे ही हैं और हमारा पाक परवरदिगार 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करने वाला है। 70 एक अदद नहीं है बल्कि 70 का मतलब है बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाला रब। वो बेहतर जानता है कि हमें क्या चीज़ देनी है, किस वक्त पे देनी है, कब देनी है और क्या चीज़ हमारे लिए मुनासिब नहीं है। और हम अपने अल्लाह से कह सकते हैं, मांग सकते हैं कि या अल्लाह अगर ये चीज़ मेरे लिए मुनासिब नहीं है तो इसको मेरे लिए मुनासिब बनाकर मुझे अता कर दे। कोई ज़िद नहीं, बस तू कादिर है ये करने पर, तू नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। और अगर अल्लाह फिर भी ना दे तो यकीन जाने अल्लाह ताला आपको वो कुछ देने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, आपकी सोचों से बढ़कर। इतना अच्छा अजर देगा, इतना अता करेगा कि हैरान रह जाओगे और शुक्र के सजदों में गिर जाओगे कि या अल्लाह पाक तूने मुझे क्या दे दिया है, क्या मैं इस काबिल भी था। ये हमारी दुआएं होती हैं जो हमें इतना कुछ दिलाती हैं, जो हम मांग रहे होते हैं वैसा नहीं, उससे भी कुछ बढ़कर ये हमारी दुआओं का अजर होता है। आखिर में मुकम्मल ईमान और यकीन के साथ अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, आमीन ज़रूर कहिएगा। या अल्लाह अगर हमारी दुआएं थक गई हैं तो इन्हें दोबारा ज़िंदा कर दे, दोबारा उम्मीद अता कर दे। अगर हमारी उम्मीद कमज़ोर पड़ गई है तो इसे मजबूत कर दे। अगर हम मांगते मांगते खामोश हो गए हैं तो तू हमें दोबारा सहर की आवाज़ दे। या रब इस रमज़ान को हमारी मग़फ़िरत का सबब बना, हमें सच्ची तौबा नसीब कर, हमें शब कदर अता कर, हमारी तकदीरें संवार दे। इस रमज़ान में हमें तहज्जुद का एहतमाम करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। इस रमज़ान में हमारी थकी हुई दुआओं को कबूल फ़रमा। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ की अदायगी आसान फ़रमा। जो बे औलाद हैं उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फ़रमा। जिनको रिज़्क़ की तंगी है उनके लिए कुशादगी पैदा फ़रमा। जो बीमार हैं उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमा। जो लोग बीमारी की वजह से रोज़ा नहीं रख पाते, या अल्लाह पाक उनको सेहत अता फ़रमा, तंदुरुस्ती अता फ़रमा, उनको रोज़ा रखने की तौफ़ीक अता फ़रमा। जो चाह कर भी नहीं रख पाते, या अल्लाह पाक उनको तौफ़ीक अता फ़रमा कि वो रोज़ा रख पाएँ। जो किसी भी वजह से परेशान है मौला, उनकी परेशानियों को दूर फरमा, उनकी मुश्किलों को आसान फरमा।
जो जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगना चाहते हैं और मांग नहीं पाए, और जो दिल में तमन्नाएं लिए बैठे हैं और ज़ुबान पर नहीं ला सके, या अल्लाह पाक उनकी दुआओं को कबूल फरमा, उन पर अपना ख़ास रहम फरमा। या अल्लाह पाक जो जो सुन रहा है उसकी मुराद पूरी कर, जो रो रहा है उसे सुकून दे, जो मांग रहा है उसे अता कर। आमीन या रब्बुल आलमीन।